centuries, the ancient city of Kannauj has been famous for producing liquid gold. In tiny bottles, they managed to trap petrichor, the smell of the earth after rains, white jasmine, camphor, and other scents using time-tested distillation methods. What started with making luxurious blends for royalty now lives on as a traditional craft in the perfume capital of India. Nothing quite spells grandeur than a whiff of Itr that has tantalized the olfactory senses for years. Perched on the bank of Ganga, Kannauj has been distilling Itr for centuries now. With flowers such as jasmine, rose and herbs like Kapoor Kachri, Sugandh Bala, the Itr made here is rich and without any dilution. कन्नौज में कई मेल के खुशबू हैं, कई तरीके से इत्र बनते हैं। केवड़ा है, गुलाब है, खस है, शमामा है, अदर मोतिया है, मेहंदी है, ये सब फूल यहाँ पैदा होता है। कन्नौज की किसान लोग पैदा करते हैं, उस हिसाब से हम लोग खुशबू बनाते हैं। मौसम के हिसाब से बनते हैं परफ्यूम। जाड़ों में जैसे शमामा है उसका यूज़ होता है, गर्मी में गुलाब यूज़ होता है, मेहंदी आती है जो हाथ में मेहंदी लगाते हैं उसका भी हम लोग इत्र बनाते हैं। मोतिया बेला फूल आता है उसका भी बनाते हैं। कई मेल की वैरायटी बनती है। The difference between modern perfume and Itr lies in the use of a solvent. Modern perfumes use alcohol, which is inexpensive and easily available. Attar, on the other hand, uses sandalwood, more potent in making scents linger on longer. ये प्रोसीजर जो है वो बहुत पुराना है और हम इसमें जो है मसाले डालते हैं कि ये जो भट्टे लगे हुए हैं हमारे इनमें ऑयल रहता है और ये हीट देते हैं इसको और हीट देने के बाद वो बॉयल होके जो पानी इसमें आता है खुशबूदार वो उससे इत्र तैयार होता है। और उसके बाद जो है हम इन भक्तों को ये प्रोसीजर लगभग हर जगह अलग अलग है। कहीं 45 दिन चलाना पड़ती है, कहीं 90 दिन जैसा डिमांड होती है मार्केट में जिस रेट की उसी हिसाब से उसको बनाते हैं। और उसके बाद माल इन भक्तों में आता है और इनमें आने के बाद ये जब माल 45 दिन या 30 दिन या जितने भी दिन हमको चलाना है चलाया, उसके बाद हम इसको जो है पतीले में डालते हैं। The scent is extracted from flower petals through the process of steaming and distillation. This method is called Deg Bhapka, which in local language means steaming in a vessel. The flower petals are boiled in large copper pots called degs that are sealed with clay to ensure the fragrant vapor does not escape. The fumes are then made to pass through a funnel called chonga in order to reach another container called bhapka. This container comprises water and essential oil to form the base of attar, which has no odor of its own. While water helps to condense the vapor, the essential oils hold the fragrance by absorbing the condensing liquid. No electricity or industrial machinery is used in the process. From the field to the factory and then to the outlet, we are now at Alam Bhai's perfume showroom. कन्नौज ही क्यों इत्र नगरी कहा जाता है और किस तरीके से प्रोसेस किया जाता है? सबसे पहले तो बताइए कितने प्रकार के होते हैं? कन्नौज की जो मेन प्रोडक्ट है कम से कम 8-10 तरीके की खुशबुएं तैयार होती हैं, जिसमें सबसे बड़े मेन है शमामा है जो सबसे जड़ी बूटियों को आता है, जो पहाड़ों से लेके आते हैं, आसाम से लेके आते हैं, हरिद्वार के उत्तराखंड की पहाड़ियों के होते हैं, अमृतसर के जो पंजाब की पहाड़ियों के होते हैं, तो वहाँ से इकट्ठा करके हम लोग कन्नौज में ला के फिर अपने एक अमाउंट के हिसाब से तैयार करते हैं। और एक गुलाब है जो कन्नौज में तैयार होता है, मिट्टी है जो यहाँ की कन्नौज की मिट्टी में खुशबू है उसका भी हम लोग बनाते इत्र हैं, मेहंदी का आता है, बेला आता है, गेंदा आता है, इन सब को मिलकर बनाते हैं कन्नौज के इत्र। The history of Itr manufacturing in the district is traced in the reign of Harshvardhan, who ruled North India between 606 and 647 AD. However, the perfume industry got a boost during the rule of Mughals. ये बताइए कि गुलाब के इत्र का इजाद कैसे हुआ था, क्या कहानी है उसके पीछे? गुलाब के इत्र जो हिस्ट्री में है और उसमें सुना है, जो हम लोगों को जो पीछे फैमिली वाले बता के गए हैं कि नूरजहाँ थी अपने हमाम में नहा रही थी, उसमें गुलाब के फूल पड़े हुए थे जो धूप से उसकी हीट से और उसमें कुछ बूंदें ऐसी पानी में तैर रही थी, तो उसको उठाया देखा
तो वो जो देखा तो उसमें गुलाब की खुशबू आ रही थी। उस हिसाब से प्रोसेस से फिर हमारे पूर्वजों ने उसको तैयार किया, तो आज तक चला आ रहा है। सर सबसे ज़्यादा समय कौन से इत्र को बनाने में लगता है कि कई दिन लग जाते हैं प्रोसेस करने में? कोई सबसे ज़्यादा टाइम जो लगता है, जो शमामे में लगता है, शमामे में कई तरीके की जड़ी बूटियाँ होती हैं, वो महीनों का प्रोसीजर चलता रहता है। उस हिसाब से वो चलते चलते बहुत टाइम लगने के बाद जब वो तैयार होता है, उसमें कलर दिया जाता है, उसमें कई चीज़ के केवड़ा है, जैसे गुलाब है, कई चीज़ों की खुशबू उसमें और मिलाई जाती है, जिससे एक नोट बनने के बाद वो फिर दुकानों पे आता है, दुकानों से फिर हम लोग इसको सेल। Owing to costly ingredients used in the product like sandalwood, agarwood, or other local exotic flowers like rose and regional herbs, the price range of these ethers vary from a couple of thousands to even 20 lakh rupees per liter. असम के जंगलों में लकड़ी पाई जाती है जिसको अगरवुड बोलते हैं, उसका ऑयल बनता है, उसको हम लोग भी सेल करते हैं। उसका ऑयल बड़ा महंगा होता है, कॉस्टली होता है, 10 लाख रुपए किलो, 12 लाख, 15 लाख, 20 लाख रुपए किलो तक का ऑयल जाता है। जो हसाइन का गुलाब होता है उसके अंदर गुलाब में ऑयल होता है, उसका ऑयल जो है वो हम लोग निकालते हैं, वो महंगा पड़ता है, 8 से 10 लाख रुपए किलो तक का जाता है। और जो बेस ऑयल पे जो हम लोग बनाते हैं वो सस्ते बनते हैं, उस हिसाब से पैमाना तय होता है। और रही और भी चीज़ों के यहाँ संदल के ऊपर जो बनाएगा वो उसकी भी डिमांड महंगा होता है, वो 1.5 लाख के आसपास रुपए किलो के हिसाब से बनता है। जो बेस ऑयल के होते हैं फिर 2,000, 5,000, 10,000, जिस हिसाब से पार्टी मांगती है इस रेट का चाहिए, उस रेट का हम लोग तैयार करके बेचते हैं। But what makes the ether so special is also what is leading to its demise. The time-consuming process is hard to sustain. Despite facing strong competition from the much cheaper synthetic perfumes, this century-old craft is still standing as the whole town strives to innovate and find new application, breathing new life into the ancient industry.